Welcome class, this is your teacher Sir John, and today in this video I'm going to discuss about English core syllabus from JAC, Jharkhand Academic Council. So JAC has already reduced your syllabus up to 25% due to this pandemic, corona pandemic, COVID-19, and the syllabus I am going to discuss with you all is reduced one. So let us without any delay we'll go into syllabus of English core. आइए हम यहाँ आपके स्क्रीन में देखते हैं बिफोर यू इट सेज उच्च एवं माध्यमिक कक्षाओं 9th से 12th के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम. So this is reduced syllabus, already it is given here. So our subject is English core. Here it is on your screen, विषय अंग्रेजी जो दिया हुआ है. So there are two books basically in 11th class. I have already told you which is, one is Snapshots and the other one is Hornbill. So apart from all those literature textbook, there are some reading sections, writing sections and grammar sections also. तो रीडिंग सेक्शन में आइए हम देखते हैं किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है. Reading comprehension will be there, yes. Note making and summary you have already done in your matriculation, I hope. Writing short composition, yes. Personal response, yes. Personal response में देखिएगा आपके इस सेक्शन में अगर पर्सनल रिस्पॉन्स, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग या बिजनेस लेटर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है. आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं उनके सामने यहाँ पर यस लिखा हुआ है. सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग समरी, राइटिंग शॉर्ट कंपोजिशन, पर्सनल रिस्पॉन्स. यहाँ पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग नहीं है तो आपको केवल नोटिस राइटिंग पढ़ना है. नेक्स्ट नंबर 6, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर. इनमें बिजनेस लेटर को छोड़ देना और लेटर टू एडिटर एंड ऑफिशियल लेटर यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू स्टडी. नंबर 7, article and speech writing has been removed, so there will be report writing left. तो समझ में आ रहा है आप लोगों को किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है. ये सिलेबस मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर दूंगा, लेकिन तब तक आप इसे समझ के रखें, मेरे साथ बने रहिए और इसको समझते जाइए ताकि जब भी आपके पास ये सिलेबस पहुँचे आप इनको देखते हुए अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं. So coming to the grammar section. In grammar section, there will be these topics. Determiners. It is determiners. Tenses, clauses, modals. Many of you might not have heard about some of the topics like determiners, clauses, modals, of course, tenses, you know. Active and passive construction, active voice and passive voice. Yes, इन सबको पढ़ना है. Reordering of sentences, sentence arrangement, error correction, editing task, yes. तो बहुत कम टॉपिक्स यहाँ ग्रामर के दिए हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत बेसिक हैं जो कि आप लोग मैट्रिकुलेशंस में पढ़ चुके हैं, तो शायद इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट विल रिवाइज इट वंस आवर क्लास ऑफ ग्रामर बिगिंस. कमिंग बैक टू द लिटरेचर विच इज़ आवर टेक्स्ट बुक. इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जहाँ यस लिखा हुआ है उनको पढ़ना है. हॉर्नबिल से द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर पढ़ना है. नंबर 3, डिस्कवरिंग ट्रूथ, ये छोड़ देना है. लैंडस्केप ऑफ द सोल, यस पढ़ना है. आगे हम देखते हैं हॉर्नबिल से ही. एलिंग प्लैनेट, The green movement's role, yes. The Browning version, पढ़ना है. Number 7, The Adventure, we do not have to study this. Number 8, Silk Road, yes, हम लोगों को पढ़ना है. Now, there is a poetry section in this textbook also. We have got 5 poems. And in that 5 poems, we have to leave out number 2, the laburnum top, जिसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है.
नंबर 1 ए फोटोग्राफ, ये पोएम पढ़ना है. नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन. नंबर 4 चाइल्डहुड. नंबर 5 फादर टू सन. यस यस यस, हम लोगों को ये पढ़ना है. so, जिसमें नो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल छोड़ देना है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिड्यूस्ड सिलेबस फ्रॉम जैक. नेक्स्ट लिटरेचर बुक इज स्नैपशॉट्स. इन स्नैपशॉट्स we'll see chapter number 1, the summer of the beautiful white horse. Yes. The address, number 2. Yes. Number 3 Ranga's marriage. Yes. Number 4 Albert Einstein at school. Yes, हम लोगों को पढ़ना है. Number 5 which is Mother's Day. No, we do not have to read this, but this story is very quite fascinating story. बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में. डायलॉग बेस्ड स्टोरी है, but we have to leave it out for this session. You may read it in the book at home and enjoy it. Number 6 the Ghat of the Only World. Leave it out. Number 7 Birth. Yes. Number 8 The Tale of Melon City. ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है. तो आप लोग समझ चुके होंगे, जिसमें नो लिखा हुआ है उन सबको हम लोगों को, उन चैप्टर्स को छोड़ देना है. बाकी हियर वी कैन सी इंग्लिश इलेक्टिव. इन दिस कॉलेज वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश इलेक्टिव, सो जस्ट लीव इट आउट. तो आप लोग देख चुके आपको अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक्स को रीडिंग सेक्शन में पढ़ना है, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं. अगर नहीं किए होंगे तो हम क्लास में करेंगे. नेक्स्ट ग्रामर, ये पार्ट भी आप लोग पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे. टेक्स्ट बुक, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, जब ये PDF आप लोगों तक पहुँचेगा गूगल क्लासरूम में, आप लोग देख लेंगे और उन सब चैप्टर्स को मार्क कर लेंगे कि जिनको हमको नहीं पढ़ना है, एंड विल डू इट इन द क्लासरूम. सो दिस इज़ इट. English Core Class 11th reduced syllabus from JAC. Thank you very much.